screen, prove that in the interval limits from 0 to pi, e raised to ax minus e raised to minus ax upon e raised to a pi minus e raised to minus a pi equal to an answer. If you see in this question, it is not mentioned, first of all, it is a Fourier series problem. But that can be understood. As we see, it is a sine series. All of the terms are sine, sine, sine. It's an infinite series. So it can be clearly understood. It is a Fourier series problem. But Fourier series, maybe there are different types of series: 0 to 2L category, minus L to L category, half range cosine, half range sine. Which series it is? How do we come to know that? वो भी यहाँ पर पता चल रहा है. As we see, the terms are only sine, sine, sine. It's a half range sine series problem. और रेंज भी आप देख रहे हैं आधी है, 0 to pi. So it is definitely a half range sine series problem. ठीक है, we have found out it's a half range sine series problem. But what is a function? तो function भी question में दिया हुआ है. Everything is indirectly mentioned over here, not directly given. We have to take the decision and start solving it. So let us write it as let f of x, because f of x is not clearly given. तो हम लोग f of x जो left hand side है, that we'll assume e raised to ax minus e raised to minus ax with denominator e raised to a pi and minus e raised to minus a pi. This complete is assumed as f of x. In the range given to us, we must write out the range 0 comma pi, and we write here considering half range sine series. So it's not mentioned, we are considering it, we are assuming it. अगर हाफ रेंज साइन सीरीज है तो फिर सिर्फ bn सॉल्व करना है. यस एग्जैक्टली, विच इज 2 अपॉन l इंटीग्रेशन 0 to l f of x and sin n pi x by l. This is half range sine series का bn formula. Let us substitute in this. bn equal to 2 upon l नहीं 2 upon pi हो जाएगा. इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेकर पाई बन जाएगा. इंटीग्रेशन का फंक्शन ये पूरा है e raised to ax. I will copy that here. पूरा complete e raised to ax minus e raised to minus ax e raised to a pi minus e raised to minus a pi, and then we have sin nx dx. So we have here the terms written like this. It seems to be very complicated. यार इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. डोंट वरी, इसको एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं. First of all, the denominator has to be taken common outside. How is that? Because denominator does not have any x in it. E raised to a pi minus e raised to minus a pi में x तो कुछ नहीं है, तो we better take it outside. इंटीग्रेशन का पार्ट उसके अंदर कुछ नहीं होगा. न्यूमरेटर we must multiply with sin x, each of them. एक टर्म बन रहा है e raised to x sin x माइनस दूसरा टर्म है e raised to minus ax sin x, and then you write dx. So denominator I have taken common outside. Numerator I have multiplied sin x inside, so that you get two terms, e raised to ax sin nx minus e raised to minus ax sin nx. फिर जो प्रॉपर्टी और फॉर्मूला होता है, मैं जरा वापस याद दिला दूं आपको. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला e raised to ax sin bx का फॉर्मूला. e raised to ax sin bx का इंटीग्रेशन होता है e raised to ax upon a square plus b square, and inside the bracket a sin bx minus b cos bx. यही इंटीग्रेशन फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है. The same has to be used at both the place, e raised to ax sin x पर भी और e raised to ax minus sin nx पर भी, e raised to minus nx sin x पर भी. bn is 2 upon, I will copy the same statement here, rather 2 upon, ये पूरा मैं ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ. और अब मैं इंटीग्रेशन लिखने जा रहा हूँ एक एक. e raised to ax upon, just a moment please, e raised to ax upon, you will have a square plus n square inside the bracket a sin nx minus n cos nx. ये एक इंटीग्रेशन हो गया. सिमिलरली दूसरा वाला e raised to minus ax upon, it is going to be minus a square plus n square
Beside that, you do get minus a sin nx and minus n cos nx. तो डिफरेंस इज ओनली प्लस ए एंड माइनस ए, वरना टर्म तो वही है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ये देखें, e raised to ax sin nx, e raised to ax sin bx. The a value is a itself, the b value is only n. दूसरे टाइम पर a का वैल्यू माइनस ए हो गया और b का वैल्यू अभी भी n है. फिर वापस आप याद करेंगे तो आप साइन वाला टर्म ओमिट करा सकते हैं, हटा दीजिए इसे, बिकॉज ये कभी भी जीरो हो जाता है. साइन वाला टर्म दोनों जगह पर वी आर गोइंग टू ओमिट देम आउट बिकॉज ये हो जाएगा जीरो. अब वो ओमिट करने के बाद व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? बी एन इक्वल टू, लेट द आउटसाइड पार्ट रिमेन सेम इनसाइड द ब्रैकेट. जरा देखिए इनसाइड द ब्रैकेट क्या है. मेरा पहला टर्म बन रहा है माइनस एन ई रेस टू ए एक्स, उसके बाद कॉस एन एक्स and denominator a square plus n square. The second term I am getting plus because minus into minus n जो है ना वो plus हो जाएगा. n e raised to minus ax cos nx and this is also a square plus n square. See like this, limit 0 से लेकर pi. So term, look at them. ये minus n cos nx goes multiply with the numerator e raised to ax. यहाँ पर भी माइनस एन कॉस एन एक्स गोज मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, बट यहाँ माइनस साइन पहले से बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस. नाउ वी हैव टू पुट द लिमिट पाई, वी हैव टू पुट द लिमिट 0. तो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट व्हेन यू पुट द लिमिट. बी एन इक्वल टू, आई विल कॉपी द आउटसाइड पार्ट सेम. ये भी मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, मुझे बस एन की जगह एक्स की जगह पर पाई रिप्लेस करना है. आई हैव टू रिप्लेस एक्स की जगह पर पाई. तो कहाँ कहाँ x की जगह पाई देखते हैं. इन द e पावर e raised to pi, inside the cos angle cos n pi, in the second e power e raised to minus a pi and the second cos angle cos of n pi. एक तो ये हो गया. लोअर लिमिट आई एम गोइंग टू कॉपी देम सेम अगेन. अब x की जगह पर 0, लोअर लिमिट इज 0, तो आई एम गोइंग टू पुट e raised to 0. भाई cos का एंगल भी बन जाएगा cos 0, फिर दूसरा भी e raised to 0 0 और cos का एंगल 0 cos of 0. तो वी हैव पुट n की जगह पर पाई, वी हैव पुट n की जगह पर 0. तो वी हैव bn इक्वल टू, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी गेट इनसाइड द ब्रैकेट. दोनों डिनोमिनेटर्स पहले ब्रैकेट के सेम है, तो क्यों ना दोनों डिनोमिनेटर को एक ही लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर टर्म माइनस n हुआ. e रेस टू a पाई का वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, लेकिन cos n पाई का वैल्यू ये हमें पता होता है, माइनस 1 रेस टू n. फिर प्लस n, e रेस टू माइनस a पाई का वैल्यू हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन cos n पाई का वैल्यू माइनस 1 रेस टू n. सो एटलीस्ट वी नो द वैल्यू ऑफ cos n पाई, वो हमने कॉपी कर लिया है. e रेस टू a पाई, e रेस टू माइनस a पाई दो डिफरेंट क्वांटिटीज है, वो हमने एज इट इज लिखा. In the second part also, I am writing the denominator a square plus n square same. What about the numerator? Numerator में minus n मिल रहा है, e raised to 0 cos 0 तो 1 होता है. फिर plus n मिल रहा है, e raised to 0 cos 0 तो 1 होता है. And so what do we observe? अरे ये तो minus n plus n. Minus n plus n तो एक दूसरे से cancel हो जाएगा and it will eventually become 0. Yes, exactly. It will eventually become 0. तो सेकेंड पार्ट हो गया 0, bn इक्वल टू. व्हाट अबाउट द टर्म हियर नाउ? यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों जगह पर कुछ कॉमननेस है. व्हाट आर द कॉमननेस? दोनों जगह माइनस n माइनस 1 रेस टू n कॉमन है. ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा e रेस टू a पाई माइनस e रेस टू माइनस a पाई. दैट विल रिमेन इनसाइड द ब्रैकेट. Let's see that. Denominator a square plus n square as it is. तो see both the places. देखिए n तो कॉमन दिख रहा है, बल्कि मैंने माइनस n कॉमन ले लिया. माइनस 1 रेस टू n कॉमन लिख रहा है, वो भी मैंने कॉमन ले लिया.
तो यहाँ बचा हुआ क्या है, e raised to a pi, ये साइन माइनस हो जाएगी बिकॉज आई हैव टेकन माइनस कॉमन, माइनस e raised to minus a pi एंड अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, द सेकेंड टर्म हैज ऑलरेडी बिकम जीरो, माइनस n प्लस n, वो लिखा ही नहीं है. वी फर्दर नोटिस दैट अरे ये तो e raised to a pi माइनस e raised to minus a pi एंड ऑल्सो e raised to a pi माइनस e raised to minus a pi, ये तो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होकर कैंसिल हो जाएंगे. एग्जैक्टली. व्हाट इज bn देन, देखिए bn और छोटा हो गया, bn अब बन जाएगा माइनस टू एन माइनस वन रेस टू एन एंड डिनोमिनेटर पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बन गया. दिस इज व्हाट वी गेट द bn फाइनली आंसर. तो ये हाफ रेंज साइन सीरीज कंसिडर्ड था. वी डोंट हैव टू फाइंड a0, वी डोंट हैव टू फाइंड an, we have to find only bn. तो thus we write now the Fourier series. अब Fourier series क्या बनती है, Fourier series होगी fx equal to summation from 1 to infinity having the term bn inside and sine of n pi x by l. ये हमारी जनरल Fourier series है of half range sine. What is fx, जरा fx पीछे से ले आते हैं, काफी बड़ा सा टर्म था, ये आपका fx है. Let us take that fx here, fx equal to summation from 1 से लेकर infinity, सॉरी 1 से infinity, infinity bn हमने ये कॉपी किया था माइनस टू एन, आई विल कॉपी दैट हियर, और बाजू में साइन nx. This is what we get our Fourier series. But the problem is a proof that. क्वेश्चन एक तरीके से इसको प्रूफ करने बोला है, तो वो प्रूफ कैसे करेंगे, लेट्स सी. आई विल ओपन द Fourier सीरीज, तो वो प्रूफ बन जाएगा, देखते हैं कैसे. आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट टर्म. देखिए अब ये पूरा टर्म मैं कॉपी कर लेता हूँ और n के जगह आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट वन बाय वन. लेट्स सी दैट. पहली बार मैं n की जगह पुट करने जा रहा हूँ 1, माइनस वन रेस टू पावर भी बन जाएगा 1, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, साइन का एंगल बन जाएगा 1x. नॉट ओनली दैट, प्लस और एक टर्म लिखते हैं. सेकेंड टाइम आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट n की जगह पर 2, माइनस वन का पावर बन जाएगा 2, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और साइन ऑफ हो जाएगा 2x. तीसरी बार 3 टर्म भी लिख दिया तो इनफ है, 3 टर्म्स आर इनफ. तीसरी बार n की जगह पुट करते हैं 3, माइनस वन का पावर हो जाता है 3, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और साइन का एंगल बन जाएगा 3, साइन का एंगल 3x. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट फर्दर मोर. अब और सिंप्लीफाई करते हैं तो सीरीज समझ में आ जाएगी. वी विल हैव, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, या वी विल हैव इक्वल टू. अब जरा मैं ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करता हूँ. The first term, look at it please. Minus 2 into minus 1 raised to 1, this will become plus 2. Yes, plus 2 upon denominator तो एक pi है, उसके बाजू में a square plus 1 and beside that we have a sin x. उसके बाद वाला टर्म minus 1 का square becomes plus 1. Minus 2 2s will become minus 4. Denominator में pi है और उसके बाजू में a स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है एंड वी हैव अ साइन 2x. आफ्टर दैट माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन, बट उसके बाद माइनस 2 3 जा 6, इट विल इवेंचुअली बिकम प्लस 6 एंड अपॉन इधर भी पाई है और डिनोमिनेटर a स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा एंड साइन ऑफ 3x. लाइकवाइज आई गेस 2 4 6 8 होगा. डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई के बाजू में a स्क्वायर प्लस 16 एंड साइन ऑफ 4x. इट विल गो ऑन लाइक दिस. यही एक्सपेक्टेड है, राइट? देन वी मस्ट प्रेजेंट द आंसर एज इफ इसमें से कॉमन निकालकर जैसे क्वेश्चन को चाहिए. अब क्वेश्चन को चाहिए था 2 अपॉन पाई कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट इज साइन x अपॉन
इन द डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस 2 साइन 2x अपॉन in the denominator a square plus 4 plus 3 sine of 3x. In the denominator a square plus 9 minus 4 sine 4x. And in the denominator a square plus 16. And it goes on like that. ये result we wanted to deduce. तो ये एक्चुअली डिडक्शन तो नहीं है, फोरियर सीरीज को ही हमने सिर्फ एक्सपांड करके लिखा है और हमने प्रूफ दैट कर दिया. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड अस टू प्रूफ.